Hello, hello friends. In this video, we are going to learn about object. हम किस चीज़ के बारे में सीखेंगे? Object के बारे में सीखेंगे. I'm using the mobile phone, तो थोड़ी सी difficulty हो सकती है कि आपको समझ आए या ना आए और I think concept would be clear अगर मेरी voice आपको clear सुन रही है. Got it. Let me have the white screen. Thereafter, we're gonna switch on to the writing mode. So let me just adjust the brush. Yeah, so the concept of our study is object. Okay, so what is an object in English grammar? In English grammar, object is that term which comes at last, first of all, in a sentence. It is not available all the times in a sentence. तो हर टाइम पे ये ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में नहीं मिलता. बट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टेटमेंट जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉसिबल है ऑब्वियसली. तो वर्ब ट्रांजिटिव होती तभी है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. सो व्हाट इज द थिंग दैट द सब्जेक्ट डज सम एक्शन ऑन समथिंग. ओके, and that action is done upon object. So whenever the action is done upon the object. So remember that subject does the action, subject transfer the verb on object. Okay, remember this thing. Then next thing that you need to keep in mind is what are the different kinds of object. सबसे पहले तो सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है. ठीक है, तो उसी हिसाब से लाइक वी गोना हैव द टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. हमारे दो तरह के ऑब्जेक्ट हमें मिलेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी वुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and second would be indirect object. Okay, so two kinds of objects, one is direct and other is indirect object. So when we talk about the direct object तो उसको कैसे फाइंड करते हैं एक सेंटेंस में. अगर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है देन हाउ टू फाइंड इट वेदर इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसे पता लगेगा कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सी, आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट. यू विल take it as an example. You will take this as an example. He killed a snake. Okay, snake. Just assume that I'm writing it as a snake. Just consider this statement. Okay, then you're gonna just see the statement once more, and let me write that once more. Okay, with the little bit of thinness of the brush. He killed a snake. He killed a snake. Then you see, when we ask the question, he killed what? A snake. When we ask ourselves the question what, we get which object? Direct object. Okay, so we get the direct object very easily. How? If we are getting the answer for what. Okay, अगर हमें स्टेटमेंट में what का रिप्लाई मिले then definitely the object is the direct object. वो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो दूसरी कैटेगरी जो इसकी होती है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
I have written already that indirect object. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही टीचेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज ही टीचेस अस US us English. Okay, so I'm writing it capital, all the letters capital, so that it would be crystal clear to you, so that's why. But you should know that as it is the name of a subject, then definitely first letter would be capital, rest would be small. So you have to think of this one कि indirect object इसमें हमें कैसे पता लगेगा. See, there is one subject, he. Teaches is the verb getting used because of the subject he, because he is a singular subject. तो us क्या चीज है और English क्या चीज है, ठीक है. Now you see in this sentence, he teaches what? English. तो what का आंसर हमें मिला, जो कि है English. तो English कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. He teaches whom? Okay, when we get the answer for whom, we got the reply us. He teaches us English. So us is what? Indirect object. तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो अगर सेंटेंस में प्रेजेंट है, देन डेफिनेटली द वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है. तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेट मी इरेज दिस, या ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जब एक्शन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है तभी ट्रांसफर होएगा. इफ द एक्शन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, देन द वर्ब यूज्ड टू बी intransitive. Okay, the verb used to be intransitive. तो वर्ब उसको हम उस वर्ब को हम बोल देते हैं कि वर्ब है intransitive वर्ब. अगर एक्शन ट्रांसफर हो सकता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है. और ट्रांजिटिव वर्ब तभी हो सकती है व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट है, देन द वर्ब वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और एक्शन कैन बी डन अपॉन समथिंग. तो जिसके ऊपर एक्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमें पता होना चाहिए. बेसिक डेफिनेशन ऑब्जेक्ट की यही है कि दैट एक्शन इज डन अपॉन समथिंग. जिसके ऊपर एक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है. बट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स बेसिकली, बट थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो देयर. वो तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ओके, तो वो तीसरी कैटेगरी है, let me change the color of the brush. Okay, thickness, yeah, we can keep little bit more. So I'll use this color. Now you see, I was talking about the third category of the object. तो कौन सा था वो? Object to preposition. तो ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, रिमेंबर दैट. तो ये हो गया हमारा थर्ड कैटेगरी, दैट इज ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन. ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन मैंने लास्ट में क्यों बोला. इसका रीजन ये है कि दैट ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन इज नॉट एज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां भी अवेलेबल होंगे वहां पे वर्ब ट्रांजिटिव होगी और उसका एक्शन के साथ कुछ लेना देना है, ठीक है. बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट का लेना देना प्रेपोजिशन से है, पर ऑब्जेक्ट का लेना देना प्रेपोजिशन से इसलिए है क्योंकि हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है वर्ब में, ठीक है.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेंटेंस, ही इज सिटिंग in the in the garden. If the sentence is he is sitting in the garden, ये अगर sentence ये लिखा जा रहा है कि he is our subject, तो is our helping verb, sitting is our action verb, और जिसको हम बोल देते हैं मेन वर्ब, नॉट इवन एक्शन. अगर सिटिंग है तो एक्शन तो कोई भी नहीं हो रहा, तो बैठा ही है वो, बट स्टिल दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सॉर्ट ऑफ पोजिशन ऑफ समबडी. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट वर्ब सेक्शन सेपरेटली. तो इसमें क्या है, इन, तो इसमें जो इन द गार्डन है लास्ट में, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. like this is in is a preposition and after in the garden is added to the preposition. तो अगर ऐसा कुछ combination मिलता है, preposition पहले आती है उसके बाद noun आता है, then this noun or the pronoun coming after the preposition would be the object to the preposition. तो ये verb का preposition तो नहीं है. sitting अगर हम ऐसे लिख देते हैं he is sitting the garden, तो मीनिंग गलत हो जाता. ही इज सिटिंग इन द गार्डन, तो ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि अगर इन हटा दें तो मीनिंग क्लियर नहीं होएगा. टू मॉडिफाई द एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए व्हेन वी आर यूजिंग द प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो उस प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होएगा नाउन और प्रोनाउन, और गार्डन इज द नाउन और प्रोनाउन, सॉरी नाउन here which is the object to the preposition in. ठीक है, I think this would clear that, like what are the three categories of the object. Then you know what we're gonna do is I'll give a sentence to you, just tell me that, or I'll just make it clear to you again, okay, that how to find it out. Okay, like he called his friends. Now, seeing this statement, okay, seeing this statement, you can say that like he called his friends. तो सबसे पहले तो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट. तो टेंस की साथ में हम थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है. तो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट. तो अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, आर वी गेटिंग द आंसर फॉर व्हाट हियर, ही कॉल्ड व्हाट, हिज फ्रेंड्स, नो. ही कॉल्ड, अगर उसने कुछ कहा होता, उस कही हुई चीज को हम व्हाट बोल सकते थे, उसने किसी को बुलाया, किसी को, ओके. ही कॉल्ड हुम, हिज फ्रेंड्स. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमें पता होना चाहिए. देन एक और सेंटेंस डालता हूं, he worked through the night. Throughout the night, or whatever. Okay, just assume that I'm writing through night, and for night just consider that he worked through the night. If this is the scenario, then you tell me what is the kind of object in the sentence. You see,
he worked what? Through the night. It's wrong. He worked whom? No, it is again not indirect object. He worked through the night. What is through here? Okay, if we are just removing that through, then what will happen? He worked the night. Okay, then it would be wrong. So through is added as a preposition through the night. So that is, the night is object to the preposition through to modify the verb worked. तो वर्कड मॉडिफाई हुआ थ्रू की वजह से, क्योंकि थ्रू preposition है और उसके एंड में लगा है नाइट, तो नाइट क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट टू द preposition थ्रू. ओके, रिमेंबर दैट. तो क्या हो गया? जो थ्रू है वो क्या हो गया? preposition. द नाइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू द preposition. तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होएगा, वर्ब को मॉडिफाई जरूर करेगा बट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होएगा. द आइडिया ऑफ learning about the object would be clear from this video. In case there would be any sort of query, then you can just send me a comment in the comment box. And if you like this video, this way of doing it, in case we don't have the right sources, right at the moment the network was low, so that I thought that why not to use कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें तो वीडियो बना के देखें. Then I'm using this stylus also, as well as I have made my own stylus by the use of pen as well as some cotton, okay, using a wire, copper wire. Okay, but we need to just make it wet a little bit, so that it would be working. Like in case I want to just keep on working, then it should be wet little bit, not be dripping wet but should be wet. तो गीला होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए. तो I think after this one I would say that this one, okay, subscribe my channel. Okay, subscribe my channel and give a thumbs up if you like the video. And in case of any other query, अगर आपके पास कोई question है मेरे लिए, then definitely I'll be able to do it in case you are asking it in a valid way. And kindly tell me the reason why you dislike my video for sure. Thank you very much and have a nice day.